और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हिजाब पर आए फैसले की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर रियासती हुकूमत के 5 फरवरी के हुक्मनामे को दुरुस्त करार दिया। अदालत ने हिजाब पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन कॉलेजेस में यूनिफॉर्म तय है उन कॉलेजेस के तालिबात को एतराज नहीं करना चाहिए। यह फैसला उन तालिबात के लिए झटका है जिन्होंने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने के हक का मुतालिबा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक हाईकोर्ट की सैरुकनी बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम खवातीन के लिए हिजाब का पहनना मजहब का लाजमी जुज नहीं है। अदालत का मानना है कि हुकूमत को हुक्मनामे को बातिल करार नहीं दिया जा सकता। अब तालिबात के पास सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का रास्ता बच गया है। India is a secular democratic republic where the constitution prevails day in and day out for all the related life affairs. The constitution rule, this field is covered by the constitution of India. Now, as far as the religious is concerned, the Quran, the commandment of Allah, is supreme in all respect. Is a bad judgment. With all respect, immense respect to the honorable judges, this will be challenged before the Supreme Court. Steps are afoot. We are getting the certified copy and will challenge it in the Supreme Court of India. Do you think the setback for the petitioners group? No, it is not a question of setback because this is subject to judicial review. And the Supreme Court is the apex court of the country, and ultimately it will be resolved there in right and legal perspective. We hope that justice will prevail in the Supreme Court of India. Future course will be on the Supreme Court. Yes, steps are afoot. We have applied for the issuance of the certified copy, and most probably within this week, we will ensure that we will file it before the Supreme. We will challenge this verdict. It's totally bad in law, erroneous, perverse judgment. How can they say, how can the High Court say that this is not a religious essential practice in Islam? When the Quran is very much clear, there is absolutely no ambiguity in the Quran. Quran is the last. It has been revealed to the Prophet. It is the book which is being governed, and 2 billion people across the world are following the Quran. And it's a question of life and death for us. We'll definitely challenge. It's a totally wrong judgment, with all respect to the honorable judges of the Karnataka High Court. कर्नाटक के उडुपी में हिजाब तनाजे को लेकर हाईकोर्ट का रुख करने वाली तालिबात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि हाईकोर्ट ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। हाईकोर्ट को सारे शवाहिद दिए गए, हमने अपनी बात रखी और दस्तूरी तरीके से अपना हक मांगा, लेकिन हमें नहीं मिला। ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಡ್ಜಸ್, ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, but they have put it this reason that it's not important in our religion, but it's false. We will take it forward, but we will follow as I said that we will take it forward with all the legal ways. We will try all the legal aspects as much as possible. We'll try to make our judges and High Court understand that it is important in our religion. Hijab is important in our religion. I don't know why they didn't knew about this. Like they have said it, our lawyer has said it, they have mentioned about it, but still they ignored this part and they kept this statement in front. It's really sad. We will fight for it. Now fight ಮಾಡ್ತೇವೆ. Now all the legal ways we'll try and we'll fight for our justice, our rights, and the verdict which came today is it's unconstitutional, because when constitution is only providing us to do this, providing us to follow my religion, follow whatever I can wear, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನನಗೆ ಇದು ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Every single media, we have been saying this whole story to every single media from 3 months, and look where we are, sitting in the same place, no justice. Do you feel isolated? We feel so many more things, we can't even explain that. We feel really sad that we are the citizens of this country and we have been not treated equally. There is no justice prevailed. So what else do you all expect? Like, what is the question you want us? What do you want us to answer right now? We expected that we would get the justice. We expected we would get the justice because it is essential in our religion. Hijab is essential in our religion, which God. उधर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चेन्नई के न्यू कॉलेज के तलबा ने एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा ने कहा कि फैसला बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है और यह हिजाब की बुनियादी पाबंदी करने वाली तालिबात को तालीम से दूर करने वाला है।
As a secular country, people can follow the religion what they want, and according to the constitution, people, the education is a right of each and every people here, right? So banning the hijab is like they are made to go away of the college, right? Because they are denying the education of the women. This has been happening for so long. We are seeing this as an Islamophobia act, right? इस बीच तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिजाब मामले पर कहा कि लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये हुकूमत को तय नहीं करना चाहिए। చిన్న చిన్న మత కలహాలు పెట్టి ఇంకో కలహాలు పెట్టి ప్రజలను విడదీసి ప్రజలను ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళని పడేసి తన్నేస్తే బెంగళూరులో విమానం దిగితే ఆడ కర్ఫ్యూ ఉంటుందట హిజాబ్ పంచాయతీ హిజాబ్ అదేందో హిజాబ్ పంచాయతీ ప్రజలు దొరుకునే ఆహారం అధ్యక్ష బట్టలు ఒక ఆయన షర్ట్ వేసుకుంటాడు ఒక ఆయన వాస్కోట్ వేసుకుంటాడు ఒక ఆయన ధోతి కట్టుకుంటాడు ఒక ఆయన షేర్వాణి మనకి ఎవరు దాంతో గవర్నమెంట్కి ఏం సంబంధం అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాదు అది ఒక అంశంలాగా చిత్రీకరించి ఇంత సంకుచితమైనటువంటి విధానంలో వ్యవహారం చేస్తే ఈ దేశం ఎక్కడికి పోతుంది ఏం జరుగుతుంది हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर एमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इनका कहना है कि अदालत का फैसला बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी है जिसके मनफी असरात मुस्लिम खवातीन पर मुरत्तब होंगे। आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में तो उसमें वेलकम किया, आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सब चीजें इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक एमआईएम पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्होंने भी पिटिशनर हैं, हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। अरे भाई अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का हिजाब भी पहने। तो ये चीज है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कमेटी की रुकन अस्मा जोहरा ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला अफसोसनाक है और ये कहना कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है सरासर गलत है। इस्लाम की बेटियों को तालीम के राह में बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है। जजमेंट आया है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अफसुर्दा है और इट्स अ सैड एंड ट्रेजिक जजमेंट। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोर्ट से इस तरह का जजमेंट आएगा। हिजाब जो मुसलमान मज़हब के लिए, दीन के लिए ज़रूरी नहीं है, ये बात जो कही गई है ये सरासर सही नहीं है। हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ है, इट्स एन एसेंशियल प्रैक्टिस। इसका हुक्म कुरान में है और एक मुसलमान औरत के लिए ज़रूरी है कि वो हिजाब पहने। यहाँ पर ये कहना कि ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ये इससे बहुत ज़्यादा मुसलमान लड़कियों की जो एजुकेशनल राइट्स हैं ये मुतासिर हो रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत मेहनत की अपनी बेटियों को पढ़ाने, आगे बढ़ाने, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचाने, और उन्होंने जो ड्रेस पहना, जो लड़कियां वहां गई थी, वो भी उनके यूनिफॉर्म के कलर के दुपट्टे को ही उन्होंने सर को और गर्दन को ढांपा था। तो कोई एक एक्स्ट्रा ड्रेस नहीं पहन रहे थे, यूनिफॉर्म का रूल भी फॉलो कर रहे थे, साथ ही साथ अपने मज़हब पर भी अमल कर रहे थे। और हमने पूरी कोशिश की कि उनको ये राइट मिल सके, क्योंकि मुसलमान लड़की को तालीम में भी आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज हिजाब की वजह से उनको गेटों पे रोका जा रहा है, कोर्ट से भी कुछ उनको रिलीफ नहीं मिली है। तो ये बहुत ज़रूरी बनता है कि उनके लिए हायर कोर्ट्स को पहुँचें और कोशिश करें कि ये जो तालीमी हक़ है उनको मिल सके। और जो भी रूल्स आना है वो अगर 1 साल पहले आएंगे, 1 साल का ग्रेस पीरियड टाइम दिया जाएगा, तो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, पेरेंट्स के लिए भी बेटर रहेगा। एग्ज़ाम्स के टाइम पे इस तरह का क़ानून इतनी फोर्स के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना, ये एक तरह से ज़्यादती है और ये माइनॉरिटी राइट्स को करटेल करता है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनका काम होता है वेलफेयर स्टेट की तरह वो काम करें और वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स को इस तरह क्रश ना करें।
हिजाब पर पाबंदी मामले पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला मायूस कुन है। एक तरफ खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ इन्हें हक इंतखाब से महरूम किया जा रहा है। यह सिर्फ मजहब का मामला नहीं बल्कि हक इंतखाब का है। जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाई कोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूस कुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनके इख्तियारात की, कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और सरकारें जो वहाँ की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। ये इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हिजाब से मुतालिक कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने मुखालिफत की है। अबू आसिम आजमी ने अपने बयान में कहा है कि कुरान में हिजाब और पर्दे का हुक्म है और इसके बावजूद हाईकोर्ट का कहना है कि इस्लाम में पर्दा लाजिम नहीं है। मुसलमानों को अपने दस्तूरी हुकूक से रोकने वाली बात है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ मजहब को लाकर, मंदिर मस्जिद को लाकर कहीं न कहीं सियासत हो रही है। अब आज कर्नाटक कोर्ट का फैसला आया है और मोहतरम जज साहब ने कहा कि पर्दा, हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि सूरह नूर, सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर के 24 नंबर आयत नंबर 30, उसमें कहा गया है कि ऐ ईमान वालों, अपनी नजरें नीचे रखो। ईमान वाली औरतों के लिए नीची नजरें रखना है, अपनी जीनत को जाहिर मत करो। कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी, अपनी बेटियों से, औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर सर से पैर तक चादर ढांप कर रखें। और उसके बाद अगर ये कहा जाए कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मैं समझता हूं कि हम स्कूल के यूनिफॉर्म का पूरा आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन मैं पूछूं कि हमारे सिख भाइयों को पगड़ी पहनना जरूरी है, उनके मजहब का हिस्सा है। क्या वो स्कूल में आए और उनको कहा जाए कि यूनिफॉर्म में पगड़ी नहीं है तो क्या उनकी पगड़ी उतारी जाएगी? बिल्कुल नहीं। मजहब एक जरूरी चीज है। सरकारें आती जाती रहती हैं, संविधान में बदलाव होता रहता है, अमेंडमेंट होता रहता है। हम असेंबली में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमेशा अमेंडमेंट आता है संविधान के अंदर। लेकिन मजहब का जो संविधान है ना, चाहे हिंदू का या मुसलमान का हो, एक बार लिखा गया है। वो मैं इस जजमेंट को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। अदालत ऊपर की भी है, ऊपर की अदालत में जाएंगे, लेकिन इस मुल्क में रहने का सबको हक है और अपने अपने मजहब पर चलने का हक है, ये संविधान में है। आज जो डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, मुसलमानों को नौकरियों से बाहर किया गया है, उनके पास काम नहीं है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनके एरिया में स्कूल नहीं है, उनको नौकरी नहीं है, अस्पताल नहीं है, इस पे बहस नहीं हो रही है। इस पे कोई कोर्ट ये फैसला नहीं कर रहा है कि नहीं भाई, इतनी आबादी जहां मुसलमानों की है, जहां दबे कुचले मुसलमान हैं, इस देश के अंदर सच्चर कमेटी, इस देश के अंदर जो है मिश्रा कमेटी, रहमान कमेटी, बहुत सारी कमेटियों ने कहा है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा खराब है। अगर कोई कोर्ट ये फैसला कर देता कि इन रिपोर्टों को लागू करो, क्योंकि इन रिपोर्टों को
की इंक्वायरी करने वाले जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उससे फैसला नहीं हो रहा है। एक शायर ने कहा है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। बीजेपी तर्जुमान वसीम राजा ने कहा कि आज कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला माहौल खराब करने वालों के मुंह पर तमाचा है। इस मुल्क में तालीम का हक सबको है और स्कूल को तय करना चाहिए कि वहां पढ़ने वाली बच्चियां क्या पहनेंगी। हाईकोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब के ऊपर, इस फैसले ने देश के अंदर जो विवाद फैलाने वाले लोग हैं, आज उन लोगों की हवा निकाल दी। इस फैसले ने बिना वजह देश के अंदर माहौल खराब करने की नीयत से कुछ लोग लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं, आपस में लड़ाने की, भेदभाव बनाने की, देश को बांटने की रणनीति अपनाते रहते हैं। इसी में एक हिजाब का मुद्दा जो बहुत गरमाया रहा, लेकिन आज जो हाई कोर्ट का फैसला आया है वो स्वागत योग्य है, अच्छा है। कभी भी किसी भी स्कूल को या इंस्टीट्यूशन को उसका अपना ड्रेस कोड लगाने का, लागू करने का उनका अधिकार है। इसमें किसी भी व्यक्ति को परहेज नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर से जो लोग इसको तूल दे रहे हैं, ऐसे तूल दे के आपस में हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास ना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे हरकतें जो हैं इनको शर्मसार करती हैं। आखिर वो लोग जो कोर्ट में गए, आखिर कोर्ट में क्या मिला? कोर्ट से उन्हें लानते मिली, कोर्ट से उनकी फटकार मिली, क्योंकि कोर्ट ने भी जो फैसला दिया वो स्कूलों के हक में दिया। और किसी भी, चाहे अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अगर मदरसे हैं, मदरसों में तो मदरसे में जो उनका अपना ड्रेस कोड है वही लोग पहन के जाते हैं मदरसे में। तो स्कूलों के ड्रेस कोड में दखलंदाजी करना सरासर गलत है। इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको लेके देश में आपसी भेदभाव और सौहार्द को खराब नहीं करना चाहिए। मैं ये मानूंगा, इस पे ऐसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। सामाजिक कारकुन रितु नारंग का हिजाब पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। यह मामला कई दिनों से चलता आ रहा है, फिर आखिर में ये बात आई कि जो हाईकोर्ट का फैसला हुआ उसे हम सभी मानेंगे। आज हाईकोर्ट के फैसला ये आया है कि हिजाब किसी धर्म के साथ रिलेटेड नहीं है। तो मैं यही बात कहूंगी हर एक बच्चे को जो वहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं कि आओ अपने कर्म पर विश्वास करो। हम लोग अपने आप को 21वीं सदी के कहते हैं, हम कहते हैं आज हम मिलेनियम चाइल्ड कहते हैं अपने आप को। आज जब हम ये सब बातें कहते हैं, हम कहते हैं कि नारी शक्ति जो है हर जगह हर व्यक्ति के साथ अपना हाथ साथ के साथ बढ़ा के चल रही है हाथ, तो क्यों आज हम जाति को, धर्म को अपने बीच में लाते हैं, विवाद बनाते हैं? क्यों आज हम ये भूल जाते हैं कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा अचीवमेंट, मेरे लक्ष्य मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आज जिस लिए वहां जा रहे हो, जिसे मैं कहती हूँ ज्ञान का मंदिर, जो कॉलेज होता है, जो मेरी नक्काशी करता है मेरे भविष्य की, वहां पर मैं यही बात कहूंगी स्टूडेंट्स को कि कभी भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए एक धर्म को लेके या एक जाति को लेके। ये समय आपका मूल्यवान समय है, बहुत मूल्यवान समय है। अपना लक्ष्य बनाइए कि मैंने ये बनना है और वहां पर चमकिए। आज औरत हर जगह चमक रही है, धरती से लेकर आकाश तक वही है। तो क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? आओ कर्तव्य, धर्म और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाओ। लेकिन मैडम इसको लेकर के कुछ लोग विरोध करने का तरीका उनका कि वो केसरिया लेकर के सामने आ जाते हैं, इस पर आप क्या कहना है? मैंने यही बात बोली है, चाहे वो कोई भी धर्म है, हम लोग को इसके ऊपर कॉलेज में जहाँ पर ज्ञान मिलता है, हमारा भविष्य होता है, वहाँ पर हमें बिल्कुल भी इन सब चीजों को नहीं लाना चाहिए। एक करेगा हिजाब, दूसरा करेगा केसरिया, तीसरा कुछ और लेकर आ जाएगा। क्या हिंदुस्तान हर समय इसी चीज को लेकर लड़ता रहेगा? क्या हम अपने आप को 21वीं सदी के पढ़े लिखे व्यक्ति क्यों कहते हैं फिर अपने आप को कि आज भी अगर हम वही सोच रखते हैं जो पुराने समय की थी, अगर हम आगे बढ़े हैं, हम कहते हैं संघवच्छतम, हम एक संघा में चल रहे हैं। आज हमें जो भी सामाजिक कारकुन वर्षा मिश्रा का कहना है कि तलबा अगर अपनी चॉइस पर हिजाब लगाकर आती हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं तो इन्हें इजाजत देनी चाहिए। सामाजिक कारकुन वर्षा मिश्रा ने कहा कि सिख बिरादरी को इसकी इजाजत है तो मुस्लिम लड़कियों को भी इजाजत मिलनी चाहिए। पर्सनली लगता है कि देखिए हिजाब जो है स्पेशली वो मुस्लिम रिलीजन में बहुत पहले से प्रचलन में है, वो आज का नहीं है। और अगर गर्ल्स उसको पहन के प्रोटेक्टेड फील करती हैं
तो उनको कॉलेज में आने के लिए हिजाब पहनने के लिए छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक तरफ से तो हमारी सरकार जो है सेक्युलर गवर्नमेंट है, हमारी प्रजातंत्र है और यहाँ पे प्रजा ही परमेश्वर है। तो एक तरह से तो कई जगह जैसे सिखों को सिख कम्युनिटी को वो लोग किरपान रखते हैं, जो उनके 5 पवित्र जो उनके पहनावे में एक अंग है उनका, तो उसको एयरलाइन में उन लोगों ने अब अलाउ कर दिया है। और तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं क्रिप्टो की समझ।